गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारक कन्हैया कुमार ने वडोदरा में कांग्रेस प्रत्याशियों के हक में चुनाव प्रचार किया। आज वडोदरा शहर महाराजाए सुंदर रंगरी बनावी थी। आखा भारत देश में सौथी पहला नंबरનું શહેર એ શહેરની હાલત હવે મચ્છર નગરી થઈ ગઈ છે, ખડોદરા થઈ ગયું છે। આ શહેરમાં લોકો ગંદુ પાણી પીવાથી મૃત્યુ પામે એવું શહેર, સ્માર્ટ સિટીની વાતો કરનારા શહેરમાં 2 ઇંચ વરસાદમાં સિંગાપોર ને શાંઘાઈ નહીં પણ વેનિસ બની જાય છે। આપ સૌ એના સાક્ષી છો। आज सुभानपुरा ने गोरवा विस्तार में लोगों ना घरे थी 2 इंच वरसाद में पानी बेक मारे ने आपड़ा मेयर नो वोर्ड जे मेयर आम चपटी वगाड़े ने काम थવું જોઈએ ए मेयर ना वोर्ड में लोगों गंदू पानी पीने मरी जाए ए वोर्ड में बहनों ने कपड़ा धोवा तलाव पर जવું પડે કારણ કે અહીંયા ડ્રેનેજ ની સુવિધા નથી। જે ઓજી વિસ્તાર 2-2 વર્ષથી મેયર ના વોર્ડ માં હોય ત્યાં લાઈટ પાણી ગટર ના હોય એવું આ વડોદરા શહેર બની ગયું છે। અહીંયા 25 વર્ષમાં એક નવો પાણીનો સ્ત્રોત ઊભો નથી કર્યો અને જ્યારે 7 વર્ષના ડીલે પછી ઊભો કર્યો તો બીજી 64 એમએલડી ની ઘટ પડી એટલે પરિસ્થિતિ જે હતી એ જ પરિસ્થિતિ। હું આપને આહવાન કરું છું કે આવનાર 5 તારીખે વડોદરા શહેરનું વિચારજો। હું તમારો અવાજ બનીશ, હું તમારા માટે લડતી આવી છું, હું તમારા માટે લડીશ, હું વડોદરા શહેર માટે લડીશ। આ શહેર જેની સાથે ખૂબ અન્યાય થયો છે કારણ કે અહીંના નેતાઓ બરોડાને રિપ્રેઝન્ટ કરવામાં કાચા નીવડ્યા। આ શહેરમાં 25 વર્ષથી એક નવી ઇન્ડસ્ટ્રી નથી લાવી શક્યા। આપણા વિદ્યાર્થીઓને અહીંથી ભણીને બહાર નોકરી કરવા જવું પડે છે। હું તમારા માટે લડીશ ને એન્શ્યોર કરીશ કે વિકાસ વડોદરા તરફ આવે। જે આઈટી હબ બેંગ્લોરમાં બન્યું એ બરોડામાં બનવું જોઈતું હતું। જે મેડિકલ હબ બન્યા બીજે દેશ શહેરોમાં એ અહીંયા બની શકતા હતા કારણ કે આપણે બહુ સરસ જગ્યાએ ઔદ્યોગિક નગરીની વચ્ચે રેલપોર્ટ, એરપોર્ટ, રેલવે તમામ વસ્તુને સુવિધાની વચ્ચોવચ્ચ આપણું શહેર છે। હું વડોદરાને આ સુવિધાઓ મળે, વડોદરામાં વિકાસ આવે એના માટે ઝઝૂમીશ। એની મારી પાસે એક ચોક્કસ વિઝન છે અને સર સયાજી રાવની નગરીમાં લોકોને તમામ સુવિધા મળે, 2 ટાઈમ ચોખ્ખું પાણી મળે, રોડ મળે, રસ્તા મળે, સ્ટ્રીટ લાઇટ મળે, અહીંનું પર્યાવરણ સુંદર થાય, લાખો વૃક્ષ વવાય અને જે વડોદરાનું તાપમાન પહેલા હતું એવું તાપમાન થાય, અહીંયા પંખાને એસીની જરૂર ના પડે એવું વડોદરા બને એ મારું સપનું છે। એના માટે લડીશ ને એના માટે તમે મને મોકો આપશો એવી વિનંતી છે। વડોદરા શહેરમાં આ ટ્રાફિક જુઓ, દરેક વ્યક્તિના હોય ઘરમાં એટલા સાધન જોઈએ, એટલા વ્હીકલ જોઈએ। પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટથી તમામ લોકો સ્કૂલ જઈ શકે, કોલેજ જઈ શકે, નોકરીએ જઈ શકે એવું પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટ વિકસાવવાનું મારું વચન છે। હું વચન આપું છું કે વડોદરા શહેરમાં જે ટીપી બાકી છે, બાજુમાં 54 નંબરની ટીપી ખુલી નથી, એના લીધે રોડ રસ્તા નહીં, કોઈ સુવિધા નહીં, એના લીધે નથી શાક માર્કેટો બનતા, નથી કોમ્યુનિટી હોલ બનતા, ગરીબોને લાખો રૂપિયા ખર્ચીને પ્રસંગો કરવા પડે। આ બધી ટીપી ખોલાવી ત્યાં તમામ સુવિધા મળે, બાળકોને રમતગમતના મેદાન મળે, સ્વિમિંગ પૂલ મળે, એના માટે લડીશ। બરોડાની 92 ટીપી 92 ટીપી ખોલાવીશ એનું હું વચન આપું છું। હું વચન આપું છું ઓજી વિસ્તારના માટે અલગથી પ્રપોઝલ બનાવીશું। આજુબાજુના તમામ ગામો જે વડોદરામાં આવ્યા એમને તમામ સુવિધા 2 વર્ષની અંદર પૂરી મળે, નહીં તો કોર્પોરેશન એમને વર્ષો સુધી સુવિધા નહીં આપી શકે। આ તમામ માટે મને આપનો સાથ જોઈએ છે। આપ લોકોને આહવાન કરું છું 5 તારીખે મારો નંબર 1 છે, પંજાના નિશાનનું બટન દબાવશો, કોંગ્રેસ પક્ષને વિજયી બનાવજો, વડોદરા શહેરને જીતાડજો। વડોદરા શહેર માટે હું લડીશ, તમારા માટે લડીશ, તમારો અવાજ બનેલી છું, હંમેશા લડું છું ને લડતી રહીશ। मोरबी में जो दर्दनाक हादसा हुआ, जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं। कल कुछ लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। मैं उनके भी परिवार के प्रति
संवेदना व्यक्त करता हूं और श्रद्धांजलि देता हूं। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। गुजरात में शराबबंदी है, तो सवाल ये है कि शराब कहाँ से आ रहा है, इस पर विचार कीजिएगा। लेकिन आप अपने जीवन से जुड़े हुए मसलों पे विचार न कर सकें, इसीलिए गुजरात के चुनाव में मैं देख रहा हूं कि भूख की बात नहीं हो रही है, भावनाओं की बात हो रही है। भावना रखना और भावनाएं होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात कही जाती है, भूखे भजन न होए गोपाला। पेट का सवाल भी एक जरूरी सवाल होता है। और मैं बिहार से आता हूँ। इस शहर में भी कई ऐसे लोग हैं जो बिहार और उत्तर प्रदेश से चल कर के रोजी रोजगार के लिए इस शहर में रहते हैं और काम करते हैं। मैं जानता हूँ कि लोगों के लिए रोजी रोटी कपड़ा मकान का सवाल कितना बड़ा सवाल है। मुझे मालूम है कि बड़ी मुश्किल से माँ बाप अपना पेट काट करके अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, महंगी शिक्षा खरीदते हैं, जो उनके औकात से बाहर की शिक्षा है उसको अपने खून पसीने की कमाई से खरीदते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं इस उम्मीद में कि बच्चे को एक दिन नौकरी मिलेगी, बच्चा हमारे जीवन का कायाकल्प करेगा। हकीकत यह है कि शिक्षा हम ले लेते हैं बड़ी मुश्किल से, और बहुत सारे लोगों को शिक्षा मिलती भी नहीं है। शिक्षा लेने के बाद उम्मीद में लोग टकटकी लगाए रहते हैं कि कब वैकेंसी निकलेगी, कब एग्जाम होगा। और परिणाम क्या होता है, पहले तो वैकेंसी नहीं आती है, वैकेंसी आती है तो एग्जाम सही टाइम पे नहीं होता है, एग्जाम अगर सही टाइम पे हो जाए तो एग्जाम में धांधली होती है, प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। पूरा का पूरा हमारा जीवन रोजी रोटी के गंभीर सवाल से गुजर रहा है। लेकिन आप ये महसूस करेंगे कि आपके जीवन के रोजमर्रे का जो सवाल है उसको राजनीतिक विमर्श से गायब कर दिया गया है, उसको चुनाव से हटा दिया गया है। मैं जब रास्ते से आ रहा था तो मैंने अपने साथी को पूछा कि ये जो पुल है ये कितने साल से बन रहा है। उन्होंने कहा 5 साल से बन रहा है। 5 साल से, 5 साल में वही लोग दोबारा जो 2017 में सरकार बनाए थे वो 2022 में सरकार बनाने के लिए आपसे वोट मांग रहे हैं, लेकिन 5 साल में उनसे पुल नहीं बन पा रहा है। इसको सोचिएगा, इस पे विचार कीजिएगा कि जब चुनाव हो रहा है तो आपके मसले क्या हैं। मेरी जितनी समझदारी है, और मैं ये समझता हूं कि कोई आदमी बिहार से आकर के, उत्तर प्रदेश से आकर के, आसाम से आकर के, दिल्ली से आकर के आपको ये नहीं बता सकता है कि गुजरात के लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ौदा की नगरी है। ये वो नगरी है जहां का महाराजा भी जमहूरियत में विश्वास करता था, जहां का महाराजा भी महिलाओं की शिक्षा को आगे बढ़ाने की बात करता था, जहां का महाराजा भी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को स्कॉलरशिप दिए थे, जहां के महाराजा ने भी एक ऐसा शानदार ड्रेनेज सिस्टम बनाया जिसकी चर्चा आज भी वैज्ञानिक करते हैं, जहां के महाराजा ने अंग्रेजी में शिक्षा देनी शुरू की। और मुझे गर्व है कि हमारी प्रत्याशी पढ़ी लिखी हैं, टेक्नोक्रेट हैं, अंग्रेजी शिक्षा लेकर के आए हैं और बड़ौदा के लोगों के लिए काम करना चाहती हैं। तो मुझे ये औकात नहीं है, ना मेरी ये हैसियत है कि मैं आपको बताऊं कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। दिल का कुछ दर्द है जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। और एक यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा। उस यात्रा की भावनाएं मैं आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूं।
आप इस बात के लिए पूरी तरह से निश्चिंत रहिए कि लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है। आप किसको वोट देंगे ये आपका अधिकार है। बस इस देश का नौजवान होने के नाते, इस देश के नौजवानों के बिहाफ पर, इस देश के महिलाओं के बिहाफ पर, इस देश के किसानों के बिहाफ पर, इस देश के छोटे व्यापारियों के बिहाफ पर, इस देश के मजदूरों के बिहाफ पर मैं आपसे कुछ गुजारिश करना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि ये याद रखिएगा कि कोई पेड़ लगाता है, पेड़ बड़ा होता है, उसका फल कोई खाता है। बड़ोदरा की नगरी में एक ऐसे महाराज पैदा हुए जिन्होंने शिक्षा का पेड़ लगाया, जिसका फल सिर्फ आप नहीं चख रहे हैं। हमारे बहुत सारे जानने वाले लोग यहाँ के फाइन आर्ट कॉलेज में पढ़ते हैं और देश का सबसे मशहूर फाइन आर्ट कॉलेज है बड़ौदा आर्ट कॉलेज। और उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को स्कॉलरशिप दिया और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आजादी के संघर्ष को जीत करके संविधान सभा का गठन हुआ, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी की जिम्मेदारी दी गई, तो एक शानदार संविधान लिखा गया। और उस संविधान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि डंडा लेकर के जो कांस्टेबल साहब खड़े हैं ना उस चौराहे पे, उनका वोट भी एक है। और अपने एसी में दुद्दू को एप्पल मोबाइल एक इस कान में लगा करके जो एसपी साहब बैठे हुए हैं ना, उनका भी वोट एक है। ये इस संविधान की ताकत है। ये इस संविधान की ताकत है कि आप भले अपने घर में अपने महिलाओं को बराबरी का अधिकार ना देते हो, लेकिन संविधान ने महिलाओं को भी वोट का अधिकार बराबर किया है। क्या साहब, आपका वोट एक और मैडम का वोट, जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं उनका वोट और जो लोग खड़े हैं उनका वोट, जो अमीर है उसका वोट, जो गरीब है उसका वोट। ये वोट का जो अधिकार है इस देश में सबसे बड़ी क्रांति है, इस बात को याद रखिएगा। अगर ये वोट का अधिकार इस कार में जाने वाले का एक नहीं होता और उस स्कूटी पर जाने वाले का एक नहीं होता, तो नेता सब हेलीकॉप्टर लेकर के आपके बड़ोदरा शहर में नहीं आता। ये वोट का अधिकार है, ये वोट का अधिकार है कि सरकार जो अहमदाबाद के रेड सिग्नल से कभी आगे नहीं बढ़ती है, उसको भी इस 5 साल से नहीं बनने वाले पुल से गुजरना पड़ता है। ये वोट का अधिकार है जिसने इस देश के आम लोगों को यह अधिकार दिया है कि आप 5 साल के लिए सरकार चुनिए। 5 साल अगर सरकार काम नहीं करती है, उसका रिपोर्ट कार्ड बनाइए। अगर आप उसके काम से सहमत नहीं हैं, तो सरकार को आप पलट दीजिए। यही फर्क होता है ना। और आपके महाराज सर गायकवाड़ जी इस बात को समझते थे, राजा का बेटा राजा होगा, ऐसा कानून अब इस देश में नहीं है। जनता जिसको राजा बनाएगी वो राजा होगा और जनता जिसको नहीं बनाएगी वो राजा नहीं होगा। लेकिन आपने एक बात महसूस किया है, यहाँ हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, रोटी पकाते हैं, हम भी पकाते हैं, हम अपना खाना खुद बनाते थे। रोटी को अगर आप 27 मिनट छोड़ दीजिएगा एक ही तरफ तवे पे, तो रोटी क्या होगा? आप 27 मिनट रोटी छोड़ देंगे तो रोटी जल जाएगा। आपने 27 साल सरकार छोड़ दिया है। इसका नतीजा क्या हुआ है? इसका नतीजा यह हो गया है कि आपके वोट के अधिकार को, जो सबसे बड़ी क्रांति थी आजाद भारत की, उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया है। टेकन फॉर ग्रांटेड जानते हैं क्या होता है? 2 तरह का ग्लास होता है, शीशा का ग्लास और स्टील का ग्लास। शीशा का ग्लास लोग बड़ा आराम से रखता है कि कहीं फूट ना जाए, और स्टील का ग्लास जैसे मन करता है वैसे फेंक देता है। मसला यह है कि जब गुजरात में चुनाव हो रहा है ना साहब, तो अलग अलग पार्टी अलग अलग उद्देश्य से चुनाव लड़ रही है। भाजपा चुनाव लड़ रही है अंतर्राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री अब लोकल नहीं रहे,
प्रधानमंत्री अब लोकल से नेशनल हो गए हैं और नेशनल से इंटरनेशनल हो गए हैं। आप तय कर लीजिए। भाजपा का मेरा एक दोस्त बोला, जानते हो मोदी जी के अंदर इतना ताकत है ना कि मोदी जी यूक्रेन और रूस का युद्ध बंद करवा दिए। हम बोले हमको गर्व है, हमको गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री अब नेशनल नहीं ग्लोबल हो चुके हैं। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि प्रधानमंत्री जी के राज्य में इतना बड़ा हादसा हो गया, घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका दे दिया गया। आप बताइए, आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है तो आप लीवर के डॉक्टर से इलाज करवाते हैं कि न्यूरोलॉजिस्ट से इलाज करवाते हैं? घड़ी बनाने वाला पुल बनाएगा तो हादसा होगा कि नहीं होगा? जिसको कार नहीं चलाने के लिए आता है उसको आप हवाई जहाज उड़ाने के लिए दे दीजिएगा, एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? तो इस गुजरात में ना दो तरह के वोट हैं, इस बात को याद रखिएगा। एक वोट है जो मोरबी में घटना हुई उस घटना को सही ठहराते हैं, और एक वोट है जो मोरबी की घटना में सरकार की लापरवाही ठहराते हैं। आपके सामने भी यही दो विकल्प है। जो सरकार की लापरवाही को नहीं मानते हैं, एक तरफ वो लोग हैं, उनको आप कितना भी समझा लीजिए वो समझने वाले नहीं हैं। एक कहावत कही जाती है कि सोए को आप जगा सकते हैं और सोने का जो नाटक करता हो उसको आप नहीं जगा सकते हैं। सुबह सुबह स्कूल जाने का टाइम होता है, बड़ी आलस होती है बच्चों की, तो कुछ तो बच्चा जो है दो बार माँ जब झकझोरती है तो उठ करके तैयार होने लगता है, और कुछ जो है ना ऊँ करते रहता है। जो सोने का नाटक कर रहा है उसको आप नहीं जगा सकते, लेकिन जो जागना चाहते हैं उनको इस प्रश्न पे विचार करना पड़ेगा कि अगर दो तरह के लोगों के बीच में ये संघर्ष है, एक जो हर हाल में सरकार को सही ठहराते हैं, 27 साल हो गया है साहब, 27 साल होने के बावजूद जिनके सपने में आज भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही आ रहा है, सारे भाजपा के नेताओं का भाषण सुन लीजिए, उनके जुबान से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम छूट ही नहीं रहा है। आप सोच करके बताइए, ये नौजवान, कितना उम्र है तुम्हारा? 22। कांग्रेस का सरकार देखे हो गुजरात में? नहीं देखे हो ना। 27 साल से भाजपा का सरकार है ना। एक पूरी की पूरी पीढ़ी गुजरात में ऐसी पैदा हो गई है जो कांग्रेस का सरकार देखी ही नहीं है। उस पीढ़ी को भी देश के गृह मंत्री डरा रहे हैं, और जो कोई डराता हो ना तो इस बात को हमको समझ लेना चाहिए कि अगर कोई दार्शनिक, कोई साधु, कोई मौलाना, कोई राजनीतिज्ञ आपको अंधेरे का डर दिखाता है ना, तो वो असल में अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना चाहता है। हमको बड़ौदा के लोगों को इस बात का गर्व होना चाहिए कि जब देश में लोग शिक्षा के बारे में सोचते भी नहीं थे, इस देश का इतिहास ऐसा रहा है कि शिक्षा लेने के चलते द्रोणाचार्य ने एकलव्य को तो शिक्षा दिया भी नहीं था, लेकिन बदले में उसका अंगूठा काट लिया था। शिक्षा का महत्व जो राज्य समझता हो तो शिक्षा इंसान को अंधेरे की तरफ नहीं, प्रकाश की तरफ ले जाता है, ज्ञान की तरफ ले जाता है। आप सोच करके हमको बताइए, 27 साल से भाजपा की सरकार है और भाजपा उसी मुद्दे पे वोट मांगने के लिए तैयार है। यह प्रश्न आपको सोचना चाहिए ना कि जब आप अपना मोटरसाइकिल लेकर के पेट्रोल पंप पे जाते हैं, 100 रुपए लीटर में आप पेट्रोल खरीदते हैं, 10 रुपये यूनिट में जो है आप बिजली खरीदते हैं। हर चीज, शिक्षा से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के, सड़क से लेकर के, बिजली से लेकर के पानी तक, हर चीज को आप खरीदते हैं। नई सड़क बनेगी,
सड़क बनने से पहले टोल बूथ लग जाता है। सड़क का काम कंप्लीट होने से पहले टोल का वसूली शुरू हो जाता है। हर चीज के लिए हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं। बदले में सरकार हमको क्या दे रही है? बदले में सरकार हमको जुमला दे रही है। जब चुनाव हो रहा है तो चुनाव इस सवाल पे होना चाहिए ना कि जब कोरोना था तो अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में लोगों को ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल रहा था, लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे। जब चुनाव हो रहा है तो इस सवाल पे होना चाहिए ना कि घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका क्यों दिया गया है। सवाल इस पे होना चाहिए ना कि क्यों सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। सवाल इस पे होना चाहिए ना कि गुजरात पुलिस में दो तरह के फोर्स हैं, एक वो जो परमानेंट है, एक वो जिनको ठेके पे बहाल किया गया है। डंडा लेकर के ड्यूटी दोनों कर रहे हैं लेकिन सैलरी दोनों को अलग अलग दिया जा रहा है। सवाल इस पे होना चाहिए ना, यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, कि आपने अपनी पूरी जिंदगी सरकार और समाज की सेवा में लगा दी और आज जब बुढ़ापा है तो आपके पास पेंशन की गारंटी नहीं है। सवाल इस पे होना चाहिए ना कि गुजरात के किसानों को भी उनके फसल का दाम क्यों नहीं मिल रहा है। सवाल इस पे होनी चाहिए ना कि किसान को टमाटर का दाम मिलता है 5 रुपया और हम टमाटर खरीदते हैं 50 रुपए में। ये जो हमारे बुनियादी सवाल हैं इसको राजनीति से गायब कर दिया गया है। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहने के लिए आया हूं, मैं आपसे आपका वोट मांगने नहीं आया हूं। मैं सिर्फ आपसे ये अपील करने के लिए आया हूं कि आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती के महान लोग हैं। आप मोहनदास करमचंद गांधी की धरती के महान लोग हैं। वो मोहनदास करमचंद गांधी जो चंपारण में जाकर के किसानों की मुक्ति के लिए लड़े थे, मैं उसी बिहार से आता हूं। मैं आपसे ये अपील करने के लिए आया हूं कि आप जो फैसला लेते हैं सिर्फ गुजरात नहीं पूरा देश आपको फॉलो करता है, इस बात को याद रखिएगा। आपने ही एक लोकल आदमी को नेशनल और नेशनल से ग्लोबल बनाया है। आपके ही नाम पर गुजरात मॉडल के नाम पर 300 से ज्यादा सीटों की सरकार दिल्ली में बनी है। तो मैं आपसे ये आग्रह करने के लिए आया हूं कि गुजरात जब सोचता है तो सिर्फ गुजरात ही नहीं पूरे देश में परिवर्तन होता है। आप जब वोट देने के लिए जाइएगा तो आपके कंधे पे ये जिम्मेवारी है कि आपको खुद के बारे में, अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में, इस देश के लोकतंत्र के बारे में और जो आपका मुद्दा है, जब इस देश में गृह मंत्री को यह अधिकार है कि उसका ठीकरा जो है वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन सकता है, तो क्या इस देश के आम लोगों को यह अधिकार नहीं है कि वो अपने रोजी रोटी के सवाल पे विमर्श करें, वो अपने रोजी रोटी के सवाल पे फैसला लें? तो मैं आपसे यह आग्रह करने के लिए आया हूं कि ये चुनाव सिर्फ गुजरात का नहीं पूरे देश का मुस्तकबिल तय करने वाला है, इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए मैं आपसे यह आग्रह करता हूं, मेरा अनुभव बहुत छोटा है, मेरा उम्र भी कम है, लेकिन यहाँ जो अनुभवी लोग बैठे हैं वो इस बात पे विचार करें और सोच करके बताएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2017 में भी भाजपा को हरा करके गुजरात की जनता को जिता करके सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2022 में भी यह जो मोरबी के अपराधी हैं, यह जो शराबबंदी होने के बाद भी नकली शराब का जो धंधा चल रहा है, किसानों को जो उनके फसल का दाम नहीं मिल रहा, आम लोगों को 10 रुपए यूनिट बिजली खरीदनी पड़ रही है, शिक्षा महंगा हुआ, चिकित्सा महंगा हुआ, सड़क पे चलना महंगा हुआ, गाड़ी खरीदना महंगा हुआ, गाड़ी में पेट्रोल डलवाना महंगा हुआ। इस शक्ति को हरा करके गुजरात के जो आम आवाम हैं, जिसको गर्वी गुजरात बोलते हैं, उस गर्व के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कांग्रेस को हरा करके और भाजपा को चुनाव जिताने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हमने कहा ना आपको, कुछ लोग अंतर्राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए और कुछ लोग राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं।
मैं आपसे ये आग्रह करने के लिए आया हूं कि एक कहावत है, कोई अपने दही को खट्टा नहीं कहता है। चुनाव प्रचार करने के लिए अगर कोई नेता आता है तो अपनी पार्टी के बारे में अच्छी अच्छी बातें करता है, अपने कैंडिडेट के बारे में अच्छी अच्छी बातें करता है, लेकिन मैं उन प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार करने के लिए जाता हूं जिस प्रत्याशी के बारे में मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि कुछ भी हो जाए हमारा प्रत्याशी गलत नहीं हो सकता है। आप बताइए, मैं नहीं बोलूंगा, आप बताइए कि बड़ोदरा के लोगों के हक और अधिकार के लिए मैडम लड़ती हैं कि नहीं लड़ती हैं? एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाती हैं कि नहीं निभाती हैं? मुझे गुजराती बोलना नहीं आता, लेकिन इतनी जरूर समझ में आता है कि ये कह रही थी कि हमारा एकमात्र मुद्दा है, हमारा मुद्दा है बड़ोदरा का विकास। तो आप तय कर लीजिए कि आपको ग्लोबल और नेशनल लीडर चुनना है कि एक पढ़ा लिखा कर्मठ टेक्नोक्रेट ईमानदार लोकल लीडर चुनना है। इसका फैसला आपको करना है। हम बस एक आखिरी बात बोल करके अपनी बात को खत्म करेंगे। हमारा अनुभव यह है साहब कि मन में अगर दुविधा हो ना तो सड़क पार करते हुए एक्सीडेंट हो जाता है। तैराक को तैरते हुए अगर मन में दुविधा हो जाए तो तैराक पानी में डूब जाता है। हम बिहार से हैं, आप गुजरात से हैं। गुजरात के लोगों का गणित हमसे ज़्यादा अच्छा है। आप बताइए 40% वाला लोग जीत सकता है कि 0% वाला जीत सकता है? 2017 में जो चूक हुई थी उस चूक को ठीक करने का वक्त है, और जब आर पार की बात हो ना तो एक मुश्त निर्णय लेने की जरूरत होती है। और अगर एक मुश्त निर्णय लीजिएगा, अगर दो तरह के वोट में आप किसके साथ हैं इसका फैसला अगर आप एक मन से कीजिएगा तो मैं आपको इस बात की गारंटी लेता हूं कि दुनिया का कोई सूटकेस ऐसा नहीं है जो आपकी चुनी हुई सरकार को खरीद ले, आपकी चुनी हुई सरकार को गिरा दे। जब दिल देना हो ना तो मन से दीजिए, जब समर्थन करना हो ना तो मन से कीजिए, इतना जोर से कीजिए, इतना दबा के कीजिए कि फिर आपकी जीत की ललकार पूरे देश में हो, पूरी दुनिया में हो। इसीलिए आप फैसला लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक सकारात्मक प्रचार लेकर के आपके बीच में आई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसी के ऊपर कोई हमला नहीं करना चाहती है। हम सीधे तौर पे कह रहे हैं कि हम 2017 में भी सरकार बनाने के लिए लड़ रहे थे, हम 2022 में भी सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं, और 2022 में अगर गुजरात की जनता किसी इत उत में नहीं फंसती है, अगर किसी दुविधा का शिकार नहीं होती है, और गुजरात के लोग जो परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन परंपराओं को समेटे हुए नए स्वाद के साथ जो परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आपके सामने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। और अगर आपका आशीर्वाद मिलता है तो हमने जो 8 वचन लिया है कि 4 लाख मुआवजा मिलेगा जो लोग कोरोना पीड़ित हैं, 10 लाख का इलाज मुफ्त होगा, जो मेजर बीमारी है उसका इलाज मुफ्त होगा, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, जो ठेके पे काम करने वाले लोग हैं उसको परमानेंट किया जाएगा, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जाएगा, किसानों को उनके फसल का पूरा दाम दिया जाएगा। इन सवालों को हम पूरा करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं पहली बार बड़ोदरा आया हूं, और बड़ोदरा आकर के मुझे इतना सुख का अनुभूति हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी तीर्थ स्थान पे आया हूं, क्योंकि ये वो धरती है जहां से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को स्कॉलरशिप दिया गया था। तो एक बार फिर से बड़ोदरा की जनता को नमस्कार करते हुए, नमन करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। जय हिंद, जय गुजरात।